Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Nirula, and I'm sure you must be enjoying watching different activities that you can conduct in your classes so that you can engage your learners and you can conduct art integrated activities. Art always enhances learning, art brings joy. This is what we want our students to learn in a joyful manner, to enhance their critical thinking, their creativity through arts integration. So, my lovely educators, let's now talk about another topic of science in the series of different topics that we are discussing already. Today, we're going to talk about deficiency diseases. Deficiency diseases, obviously, when you're talking about food and you're not taking proper diet, balanced diet नहीं ले रहे हैं, तो obviously we will suffer from some deficiency diseases. तो उन deficiency diseases के बारे में पढ़ने के लिए कौन सी हम activities करा सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में at Mentoring the Mentors. If you have not subscribed to my channel, you are new to my channel, do subscribe it, like the videos if you really like. Only then hit the like button, right? Not for the sake of just liking, right? And if you really appreciate my initiative of sharing these videos with you, don't forget to share such videos in your circle as well. Would love to have your support, your comments in the comment section below. So let's begin today's video. Knowledge is power. Prevent deficiency diseases with informed choices and a balanced diet. That's the tagline I have given to it. Knowledge is power. Little knowledge is a dangerous thing. दोनों चीजें हैं. Knowledge हो, that is a power. बट अगर लिटिल नॉलेज हो, लिटिल इंफॉर्मेशन हो, आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है, कहीं से सुन लिया, कहीं से थोड़ा सा पढ़ लिया, ऑथेंटिक रिसोर्सेज को फॉलो नहीं किया, मे बी वी स्टार्ट फॉलोइंग, वी स्टार्ट डूइंग सच एक्टिविटीज, ऐसा खाना खाने लग जाएंगे, ऐसी चीजें खुद ही प्रैक्टिस करने शुरू हो जाएंगे, दैट is going to harm us, right? That may lead to certain kinds of diseases, right? कई बार खाना खाते हैं, ये ज्यादा सेहत के लिए अच्छा है, ये एक ही चीज के पीछे हम यही खाई जाएं ओनली. And what about the vitamins? What about the carbohydrates? What about the fats and all? So everything is important in a balanced proportion. So let's have informed choices, my lovely educators, and this is how we have to guide our students as well. So here you go, my lovely educators. Deficiency diseases occur when our bodies lack essential vitamins and minerals. जब हमें proper vitamins और mineral नहीं मिलते हैं तो deficiency diseases होती हैं. तो इन विटामिन की deficiency से related diseases के बारे में भी पढ़ेंगे. आप सब अपनी क्लास में कोर्स में है आपके पास, आप बताओगे कि आयरन की deficiencies है, एनीमिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी है, बोन्स वीक हो जाती हैं, राइट? एंड विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, सी है, डी है, राइट? रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरी बेरी है, नाइट ब्लाइंडनेस है. यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ डिजीजेस, वो आपके सिलेबस में ऑलरेडी लिखी हुई हैं. नाउ that may lead to serious health problems. By understanding which nutrients we need and where to find them, we can make informed choices about our diets and prevent these diseases from occurring. A balanced diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins can provide us with nutrients we need to stay healthy and strong. Let's prioritize our healthy diet. I mean, let's prioritize taking healthy diet. Let's prioritize our health by making informed choices about what we eat, taking proactive steps to prevent deficiency diseases. Remember, knowledge is power when it comes to our health and well-being. So आप डिजीज का रोल प्ले करा सकते हैं क्लास में. हैव योर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन रोल प्ले एक्टिविटी वेयर they can act out some symptoms of the deficiency diseases, encourage them to research and learn about the different symptoms and how they affect our body, right? So research जो है, it is higher order thinking skill. जब बच्चे रिसर्च करते हैं, अलग अलग सोर्सेस को, लाइब्रेरी में जाके बुक्स को रिसर्च करते हैं, गूगल करते हैं, राइट? आपके पास ई बुक्स हैं, ली लाइब्रेरी है, वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, दे आर टेकिंग इंटरव्यूज, दे आर टॉकिंग टू द ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर टॉकिंग टू द पेरेंट्स, दे आर टॉकिंग टू द नेबरहुड, दे आर कलेक्टिंग सम डेटा, दे आर टेकिंग इंटरव्यू so of the teachers also. I mean, when they are researching, they are collecting data, they are analyzing it, interpreting it, okay, then they are coming to some conclusion. That is research, that is higher order thinking skill, and then they are presenting the same creatively in the form of role plays.
So many skills they are being enhanced just in conducting a role play, right? So now going to another activity, nutrient matchup game. Create a game where your students match different deficiency diseases with nutrient that is lacking in the diet. ओके एक डेफिशिएंसी डिजीज है, एक आपने अलग अलग कार्ड बना सकते हैं, राइट? एक के ऊपर डेफिशिएंसी डिजीजेस लिखे हुए, एक के ऊपर विटामिन्स और मिनरल्स और व्हाटएवर न्यूट्रिएंट्स दे आर रिटन। सो उनको मैच करेंगे, पेयरिंग करेंगे, डिफरेंट कार्ड्स जो हैं वो इकट्ठे हैं। यहाँ इसको एक और चीज कर सकते हैं, आई मीन आपके बच्चों ने जो कार्ड्स हैं उसमें से रैंडमली एक एक कार्ड उठाया ना, उनको पेयर अप करना है, उनको ढूंढना है, उनको अपना पार्टनर फाइंड करना है कि अगर इसके पास नाइट ब्लाइंडनेस आया है उसको विटामिन ए वाला आगे ढूंढना है, बेरी बेरी आया विटामिन बी वाला ढूंढना है, किसी का स्कर्वी आया तो उसको ये ढूंढना है कि विटामिन सी वाला कार्ड किसके पास है। सो likewise you can conduct such activities. Now encourage them to discuss the importance of each nutrients for a healthy diet. Students can create game themselves, board game, e-game, card game, ये सब चीजें भी वो बना सकते, राइट? तो ये न्यूट्रिएंट मैचअप गेम आप करवा सकते हैं अलग अलग तरीकों के साथ। गेम्स बनाएं बच्चे, किस तरीके की गेम्स, वो कार्ड गेम है या बोर्ड गेम है, ई गेम है, ई मैचअप करा सकते हैं, जैसे भी वो करना चाहें। तो दैट इज द क्रिएशन लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल्स। केस स्टडी एनालिसिस करा सकते हैं, प्रोवाइड योर स्टूडेंट विद केस स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल्स विद डेफिशिएंसी डिजीजेस, राइट? सपोज अगर मैं अपना केस स्टडी देती हूँ, लाइक मैंने सपोज आई हैव गॉन थ्रू अ हेल्थ चेकअप, मेरे पास कुछ ऐसा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो एंड सो डिसीज, डेफिशिएंसी डिजीजेस, राइट? तो वो केस स्टडी को एनालाइज कर सकते हैं कि ये ऐसी डेफिशिएंसी डिजीजेस आई है, क्या डेफिशिएंसी है, क्यों हो सकती है, किसकी वजह से है। हमारी डाइट का एनालिसिस करें कि कैसा हम डाइट ले रहे थे, मे बी वी वर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट नहीं था वो, एक फैट्स को, फ्राइड फूड को या प्रोटीन्स खा लिया, विटामिन का, सैलड का, उसमें रफेज का कोई प्लेस नहीं था डाइट में। सो केस स्टडी एनालिसिस जो है वो करवा सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स का देख लें कि केस स्टडी की रिपोर्ट लेकर कि उन्होंने, अगर किसी ने हेल्थ चेकअप कराया है, नेबर में किसी ने कराया है, या कोई ऐसे ही सफर कर रहा है उस डिजीज के साथ, तो उसको एनालाइज करे। दिस इज कॉल्ड रियल लाइफ इंटीग्रेशन, तो यू कैन गो हेड विद दैट ऑल्सो, right? Encourage them to research and learn about different treatment options for each deficiency disease. Now, food fortification lab, conduct a lab experiment where your students fortify different foods with vitamins, minerals to prevent deficiency diseases. Encourage them to discuss the importance of fortification for public health. तो इस चीज को आप क्लास में, अपने स्कूल में अगर लैब है, ये सब अवेलेबल है, यू कैन कंडक्ट दैट। नहीं है तो बाहर कहीं लैब पर भी विजिट करवा सकते हैं, उनकी लैब के साथ टाई अप करके कि किस तरीके से ये टेस्टिंग की जाती है, राइट? फूड फोर्टिफिकेशन लैब में तो आप अगर अवेलेबल है तो करा सकते हैं, नहीं तो वर्चुअली भी उनको दिखा सकते हैं। तो द सेम कैन बी कंडक्टेड। पब्लिक हेल्थ कैंपेन, हैव योर स्टूडेंट रिसर्च एंड क्रिएट पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, अवेयरनेस क्रिएट करें, डेफिशिएंसी डिजीजेस से कैसे बच सकते हैं, राइट? क्या है डेफिशिएंसी डिजीजेस, उसके कॉजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। एनकरेज देम टू यूज अ क्रिएटिव विजुअल्स मैसेजिंग टू द एंगेज द ऑडियंस, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ फ्रेजेस, कुछ एक्रोनिम्स, सेवा, एसडी, सोशल अवेयरनेस, कम्युनिटी सर्विस। देखिए इन सब चीजों का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ रहा है, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आ रहा है, फूड की जब हमारी बात हो रही है, राइट, और जीरो हंगर की बात हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की भी बात होगी जब हम वेस्टेज की बात करते हैं कि फूड वेस्टेज को रोकना है। कितने सारे हम एसडीजीज इसमें कवर कर रहे हैं। सोशली लोगों को हम पोस्टर्स बनाकर अवेयर करा रहे हैं उस चीज के लिए, तो सोशल अवेयरनेस आ रहा है। कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं तो कम्युनिटी सर्विस आ रहा है। सोसाइटी को भी अवेयर करा रहे हैं, उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, रियल लाइफ इंटीग्रेशन है। और एक यहाँ पर सेवा लिखा हुआ है, लाइक सोशली एम्पावर्ड वेलफेयर के जो असेसमेंट के असाइनमेंट जो हमारी हैं, जिसको हम पहले SUPW भी बोलते थे, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, तो ये एम्पावर करने के लिए है, राइट? तो ये CBSE का एक प्रोजेक्ट है जो हमने सब बच्चों को कराना है, राइट? तो इसका जो आप टॉपिक लेंगे वो आपका हर एक क्लास का डिफरेंट भी हो सकता है, आपका पूरा एंटायर स्कूल का एक टॉपिक भी हो सकता है। सपोज आपने ये फूड का ले लिया, डिजीजेस से रिलेटेड ले लिया, तो हर क्लास के बच्चे आपके
जो है अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। कोई मॉर्निंग असेंबली कर रहा है इसके ऊपर, कोई कैंपेन कर रहा है बाहर, पोस्टर मेकिंग, कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए कि जब सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के एक टॉपिक के ऊपर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्या है, सेवा का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज दे आर कंडक्टिंग अंडर वन टॉपिक। तो कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू, जो कि कम्युनिटी से रिलेटेड हो। तो सच सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड। आगे है कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन। होस्ट अ कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन where your students learn how to cook meals that are rich in vitamins and minerals. आप खुद डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अगर आपके स्कूल में क्लब है, गेस्ट लेक्चर्स को बुला सकते हैं, पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट वो पेरेंट्स को बुला सकते हैं। मदर्स डे आ रहा है मई के मंथ में, फादर्स डे आता है जून के मंथ में, आप पेरेंट्स को बुला सकते हैं, फैमिली डे होता है, लेट्स कम एंड कुक टुगेदर, राइट। ताकि वो एक ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी, आपकी पेरेंट कोलैबोरेशन भी हो गया, राइट। ग्रैंड पेरेंट्स डे पर भी ऐसा कुछ कंडक्ट कर सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं। चाहे जो मर्जी कहें, उनकी डाइट हमसे फार बेटर थी, तब इतना कोई जंक फूड, फास्ट फूड, कुछ एप्स ये नहीं है कि 1 मिनट में क्लिक करो तो विद द ब्लिंक यू विल बी एबल टू गेट इट। तो ये सब चीजें तो नहीं थी ना तब। दे वर कुकिंग, दे इवन स्टिल बिलीव ऑन हेल्दी डाइट, राइट। अगर मैं भी घर में बात करूं तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि बाहर से बना बनाया कुछ मिर्ची या कुछ ले लो। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी भी कहते हैं उनमें मिलावट होती है, घर में पिसे हुए मसाले यूज करने हैं, घर का यूज करना, जितना हम कर सकें वो करना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम देम। तो आप ग्रैंड पेरेंट्स डे कर सकते हैं, उससे कुछ टिप्स ले सकते हैं इसके ऊपर। तो दीज एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड। यही है टीचर्स रियल लाइफ इंटीग्रेशन। और इसके बियॉन्ड आप क्या करेंगे? न्यूट्रिशन काउंसलिंग रोल प्ले कर सकते हैं। Have your students participate in a role play activity where they provide nutrition counseling to the individuals with deficiency diseases। एक बच्चा आ रहा है, आपका काउंसलिंग का रोल प्ले हो गया, एक बच्चा आ रहा है न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के साथ में, डाइटिशियन के साथ में, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ में, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, तो मुझे प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाए। मेरे को ये प्रॉब्लम है, कैन यू सजेस्ट समथिंग फॉर मी। तो वो एक क्या है कि बच्चे अपनी लर्निंग को वहां पर शेयर कर रहे हैं। लिख के ही थोड़ा ना हर चीज को करना है हर वक्त। यू कैन कंडक्ट अ रोल प्ले, इस तरीके से कर सकते हैं। बच्चों को अगर पता है वो जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बना है, एक बच्चा नहीं हो, उसके लिए मल्टीपल आप बना सकते हैं, राइट। ताकि हर बच्चे को वो आगे अपना रोल प्रेजेंट करने का मौका मिले। पेयरिंग कर सकते हैं कि एक बच्चा अनीमिक है, इसके लिए जो जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है वो ये है, ये इसके बारे में बताएगा। उसके बाद में दूसरा बच्चा आ रहा है, उसको कुछ बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी आ रही है, सोल्यूशन भी आ रहा है, और बच्चे उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर यू कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन योर क्लास, इट इज गोइंग टू बी रियली एनरिचिंग इन द क्लास। वो क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज हम सिर्फ खुद ही बोलते रहते, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कराते। तो अगर हम बच्चों को बोलेंगे लेट देम प्रेजेंट, वो प्रिपेयर करके भी आएंगे, वो प्रेजेंट भी करेंगे, राइट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट खुद ब खुद ही हो जाएगा, राइट। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज म्यूजियम और एग्जिबिट गैलरी वॉक करा सकते हैं। हैव योर स्टूडेंट रिसर्च, पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। क्रिएट अ म्यूजियम एग्जिबिट शोकेसिंग डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। उन्होंने डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस अपने गैलरी वॉक के लिए वो बना दिया। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, उसका पब्लिक की हेल्थ के ऊपर क्या असर हो रहा है। एनकरेज देम टू यूज क्रिएटिव विजुअल्स इंटरैक्टिव एलिमेंट्स टू एंगेज द विजिटर्स। ये तो आपकी गैलरी वॉक होगी। एक तो पहले तो आपका क्या हो गया, ये म्यूजियम एग्जिबिट। इस म्यूजियम एग्जीबिशन को जो उन्होंने लगाई है, इसको गैलरी वॉक में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसके ऊपर अलग अलग क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी कमिंग, दे विल बी विजिटिंग। तो उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिखेंगे। अगर उनके कुछ सजेशंस हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे हो सकता है, इसके लिए ये सॉल्यूशन है, तो वो दैट विल बी इंटरैक्टिव। तो क्या हो गया आपका गैलरी वॉक। Nutrient analysis of foods. You can conduct a lab experiment where your students analyze the nutrient content of different foods to determine if they are deficient in any nutrients. Encourage them to discuss the importance of varied and a balanced health diet for a good health. तो इसमें भी आप अगेन बाहर फूड लैब में कहीं बच्चों का जो विजिट है उस टाइम पर ये चीजें प्लान करा सकते हैं। फूड डायरी एनालिसिस। So have your students analyze their own food diaries and identify if they are at risk for any deficiency diseases. अगर वो फूड जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, फूड डायरी बना रहे हैं, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियोस में बताया था, फूड डायरी, फूड जर्नल बनाया कि मैंने एक हफ्ते का मील ये खाया है,
और ये हफ्ते का ये खाया है तो मेरा यही तो रिपीट हो रहा है, महीने बाद, 2 महीने, सालों तक अगर मैं ये खाना खा रहा हूँ, एम आई प्रोन टू सर्टेन काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस? लेट देम थिंक क्रिटिकली, लेट देम मेक चेंजेस इन their डाइट। अपनी डाइट के बारे में डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स की डाइट, अपने सिबलिंग्स की डाइट, ग्रैंड पेरेंट्स की डाइट, उसको एनालिसिस करें, राइट? देन ओनली दे कैन अंडरस्टैंड एंड यूज द सेम इन द रियल लाइफ। डेयरी अगर आसपास में है, डेयरी डेयरी इट्स अ डिफरेंस बिटवीन डायरी एंड डेयरी। इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स पढ़ाते हैं यूजुअली बच्चों को, बच्चे मिस्टेक करते हैं उसमें ना, डायरी एंड डेयरी में। सो विजिट टू द डेयरी, a visit to the dairy can be planned in order to know about milk products, उसकी प्रोसेसिंग, उसका प्रिजर्वेशन कैसा होता है, करा सकते हैं। घर में जो सुबह दूध देने के लिए आता है, वो उसके साथ एक गेस्ट स्पीकर, गेस्ट लेक्चर उसके थ्रू भी करा सकते हैं, अगर आपके कोई पेरेंट उस चीज में इन्वॉल्व हैं तो, राइट? उनसे कांटेक्ट करके कि जिसकी आपकी डेयरी है आसपास जरूर होगी, ठीक है, तो आप उनका एक गेस्ट लेक्चर भी अटेंड करवा सकते हैं बच्चों को, या उनको वहां पर विजिट करा सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। एंड नाउ राइम टाइम। In the face of deficiency, diseases does grow. A lack of nutrients, our bodies full. ठीक है, आपको पता है डेफिशिएंसी डिजीज होंगी तो हमारे लिए क्या फ्रेंड तो नहीं है, दैट इज अ फो। From iron to vitamin C and calcium to deficiency disease is a burden to ensure. NCU, anemia, a lack of iron in the blood, right? That's why we are anemic when there is lack of iron. A weakness of body, a flood of mud, from fatigue to pallor, a symptom of pain, anemia, deficiency disease, never to faint. So आपको बच के रहना है, anemic नहीं होना है, और उस चीज के लिए you have to take vitamin B12, you have to take green veggies, right? तो बच्चों को सिखाएंगे। Scurvy, a lack of vitamin C, a disease of sailors, a misery to see. From bleeding gums to fatigue, if you have bleeding gums, fatigue hai, pain hai, scurvy, a deficiency disease, nothing to gain. So take more vitamin C. Vitamin C किस में होता है? Lemon, orange, talk about those kinds of fruits. Rickets, a lack of vitamin D, the disease of bones, a pain to be, from weak bones to bow legs, legs मुड़ जाती हैं. A symptom of strife, rickets, a deficiency disease, a threat to life, is indeed a threat to life. Okay. So let us take care of our nutrient needs, a balanced diet, a way to succeed, from fruits and veggies to meats and grains, a healthy lifestyle, nothing to restrain. So that's entirely up to you. ये नहीं है कि हमेशा आपको नॉन वेज फूड लेकर ही you will be having a balanced diet. It's not like that. You go ahead with a vegetarian diet. If you're vegans, if you're vegetarians, go ahead with that kind of balanced diet. जो भी उसके components हैं, आपको vegetative diet में vegetarians के लिए भी ample opportunities are there. So go ahead with that and encourage your students to have balanced diet. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Keep on, creating such engaging classes through these activities. Stay tuned. Keep watching Mentoring the Mentors. Don't forget to share your valuable comments in the comment section below. Thank you. Have a nice day.